मुझे बोलना आप तब। Assalamu alaikum dear students. So we are going to continue our previous chapter, that is units and dimensions, in which I have already discussed physical quantity and its nature, that it's product of two things, a numerical part and a unit. And now we can go further in this like this, that a physical quantity फिजिकल क्वांटिटीज जो जितनी भी फिजिक्स में है, मैंने आपको कल पढ़ा दिया कि हमने इनको ग्रुपिंग्स में डाल दिया है। एक ग्रुप होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड होता है डिराइव्ड, एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री। These are the three groups in which we have divided the physical quantities in physics. And fundamental मैंने आपको कल पढ़ा दिया that fundamental quantities are those quantities in physics which are basic and independent of each other, and they are 7 in number, and those are mass, the symbol is m and its unit is kg. Second is length, the symbol is L, unit is meter. Third is time, symbol is T, unit is second. Fourth is temperature, unit is that Kelvin, and therefore we represent it by K. Fifth is current, unit is ampere, and we represent therefore it by A. Sixth is luminous intensity. ये क्वांटिटी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में, luminous intensity, its unit is candela, represented by CD. And seventh is quantity of matter. A unit is mole and is represented by MOL. These are the 7 fundamental quantities. They are independent of each other and are basic बुनियादी quantities जिनको आप physics में कह सकते हो. They are only 7 in number. Now derived. Derived quantity से आपको fundamental अभी clear हो जाएगा. What do you mean by derived quantities? देखिए, they are those quantities which can be represented in terms of fundamental quantities. That's why they are called as derived, है ना. Derived are those which can be represented in terms of fundamental quantities. वो quantities physics में जिनको हम represent कर सकते हैं in terms of fundamental quantities, such quantities are called as derived quantities. तो represented in terms of fundamental, represented in terms of fundamental, represented in terms of fundamental. Those quantities which we can represent in terms of fundamental quantities are called as derived quantities. For example, देखिए आपने एक क्वांटिटी पढ़ा होता है that is area. एग्जाम्पल में डेराइव्ड क्वांटिटीज में आप एरिया लीजिए. देखिए एरिया यू नो दैट इट्स मेड ऑफ टू थिंग्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना. इट्स प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस, लेंथ और ब्रेड्थ. तो अगर दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट है लेंथ और ब्रेड्थ, तो मैं लिखूं यहां पे दिस इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. देखिए लेंथ जो है, अब आपने देखा पीछे फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने भी पढ़ा दिया आपको. देखिए आपका लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इट्स सिंबल इज एल. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एरिया में लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मैं लिख सकता हूं एल. ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही, ब्रेड्थ इज आल्सो ए लेंथ, है ना. इट्स यूनिट इज आल्सो मीटर. देयरफॉर आई कैन राइट इट्स प्रोडक्ट ऑफ एल एंड एल. That's a fundamental quantity. So I can write when base are same powers are added, it's L square. तो एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है जिसका नाम है लेंथ. ठीक है. सो एरिया इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी because it can be represented in terms of a fundamental quantity and that fundamental quantity is L. तो एरिया हमारी एक derived quantity है क्योंकि हमने इसको represent किया in terms of a fundamental quantity, that's length. Another example is, देख लीजिए अगर आप वॉल्यूम लेंगे, आपने पढ़ा होता है 10th क्लास में वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट.
तो मैं लिख सकता हूं इट्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो लेंथ इज अगेन अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ब्रेड्थ भी लेंथ होता है क्योंकि यूनिट इज सेम मीटर, देन हाइट इज अगेन लेंथ, तो ये बना एल क्यूब। तो वॉल्यूम आपका जो है दैट इज एल क्यूब। सो वॉल्यूम इज अगेन a derived quantity. Sir, why? Volume is again a derived quantity because it can be represented in terms of a fundamental quantity that is length. So all those quantities in physics which we can represent in terms of a fundamental quantity, that quantity is called as a derived quantity. In the same fashion, अगर आप speed देखेंगे, speed is a quantity in physics and is defined as distance by time. Class 9th, distance by time. देखिए अब आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस होता है अगेन लेंथ, है ना, बिकॉज यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, सो इट इज अगेन लेंथ। टाइम इज अगेन अ फंडामेंटल क्वांटिटी, आई हैव डिस्कस्ड इट हियर। सी देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम आपका, सिंबल इज टी एंड यूनिट इज सेकेंड। तो आपके पास लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी और आपके पास टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी। सो आई कैन राइट it is L raised power 1 T raised power 1, therefore I can write it's L raised power 1 T raised power minus 1. So speed is a derived quantity because it can be represented in terms of two fundamental quantities, one is length and another is time. तो स्पीड भी हमारा एक डेराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि हमने इसको भी रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज हियर, वन इज योर लेंथ एंड अनदर इज योर टाइम। सो इट इज स्पीड इज इक्वल एल रेज पावर 1 टी रेज पावर माइनस 1। तो अगर आप बुक्स देखेंगे, अगर आपके पास रेफरेंसेस होंगी तो आपने देखा होगा वहां पे लिखा होता है स्पीड इज इक्वल m0 L1 t माइनस 1। आप बोलोगे हमने तो पढ़ा था L1 t माइनस 1, व्हाट इज द डिफरेंस हियर? नथिंग, बिकॉज यू नो दैट एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इज अगेन 1। तो m रेज्ड पावर 0 से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि m रेज्ड पावर 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इन मैथमेटिक्स इज 1, देयरफॉर इट्स अगेन L1 t माइनस 1। इससे एक चीज क्लियर हुआ कि स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है फिजिक्स में जो मास पे डिपेंड नहीं करती, मास के पावर जो है उसका 0 है, मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास। आपने सर मास इंट्रोड्यूस क्यों किया? क्योंकि हम जब काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं, हम जब मोशन पढ़ते हैं, तब एक बॉडी का मास इन्वॉल्व होता है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी हूं, मेरा मास इन्वॉल्व है, मैं कितनी डिस्टेंस कवर करता हूं और कितना टाइम मुझे लगता है ना, मास डिस्टेंस एंड टाइम। यहां से क्लियर हुआ कि स्पीड मास पे डिपेंड नहीं करता, टाइम लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। कैसे करता है वो क्लियर है इक्वेशन से, दैट इट डिपेंड्स ऑन m रेज़्ड पावर 0, मतलब मास पे डिपेंडेंसी ही नहीं, लेंथ पे डिपेंडेंसी है रेज़्ड पावर 1 एंड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स t रेज़्ड पावर माइनस 1। सो स्पीड एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको ऐसी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है जिसको हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक m0 L1 t माइनस 1। अब आप इतना याद रखिए कि मोशन काइनेमैटिक्स में जब आप आगे जाएंगे तो हम एक बॉडी का मास, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसको कितना टाइम लगा, तो यहां क्लियर हुआ कि मास पे तो डिपेंडेंसी नहीं है, बट डिस्टेंस कितनी कवर की और टाइम कितना लगा उस पर डिपेंडेंसी है। इन द सेम फैशन अगर आप वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी भी एक क्वांटिटी है फिजिक्स में। ये वो क्वांटिटीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी जो आपने 9th 10th में एनकाउंटर की होती है, जो आपने देखी होती है। वरना अगर आप देखेंगे आगे जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी क्वांटिटीज को, नई जो क्वांटिटीज आप पहली बार सुनोगे, तो उनका भी ऐसे हमें यूनिट्स एंड डायमेंशंस में डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना पड़ता है। देखिए वेलोसिटी इज अगेन अ क्वांटिटी विच इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो द ओनली डिफरेंस हियर इज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। मगर यहां पे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में वेक्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे इतना है कि डिस्टेंस भी लेंथ ही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होता है, इसका भी यूनिट मीटर ही होता है, डिस्टेंस का भी, और डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही होता है। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ एंड टाइम इज टाइम, बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मैं लिख सकता हूं इट्स L1 T1, तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल
L1 t minus 1. So velocity is again a derived quantity because it can be represented in terms of two fundamental quantities. One is your length and another is your time. तो बुक्स में लिखा होता है यहाँ पे m0, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. That represents again that velocity is independent of mass क्योंकि उस पे जीरो पावर है. Anything raised to power 0 is 1, but it depends on length and it depends on time. So velocity is again a derived quantity because all those quantities in physics which we can represent in terms of fundamental quantities are said to be derived quantities. तो derived से ही हमें fundamental का भी आइडिया पता चला कि derived quantities वो quantities होती है जो fundamental पे डिपेंड करती है और fundamental quantities वो होती है जो basic और independent of each other होती है. जैसे mass is independent of length is independent of time, that is what is the meaning of a fundamental and a derived quantity. In the same fashion अगर आप acceleration देखेंगे, एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है जो आपने पढ़ी होती है क्लास 9 तक, 9-10 तक. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. देखिए इट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो एक्सेलरेशन जो आपका है, सर ये कौन सी क्वांटिटी है पता चलेगा अभी आपको. ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. क्यों? देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया कि वेलोसिटी इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी एक डिराइव्ड है और डिपेंड करता है m0, तो वेलोसिटी के बदले m0 L1 t minus 1 डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम है. टाइम इज अगेन ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मैंने t लिख दिया और पावर 1 है. इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका एक्सेलरेशन जो है ये बनेगा m0, इट इज L1. अब t रेस्ट पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 जाएगा, तो इट इज t रेस्ट पावर -2. तो ये आ गया एक्सेलरेशन इज अगेन ए डेराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज. वन इज मास, अनदर इज लेंथ एंड थर्ड इज टाइम. तो ये मास पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, लेंथ के पावर 1 पे एंड टाइम रेस्ट पावर -2 पे डिपेंडेंसी है. इन द सेम फैशन और एक क्वांटिटी देख लीजिए आप, आपके पास एक फोर्स क्वांटिटी है. फोर्स जो है आपका, दैट फोर्स इन फिजिक्स, तो फोर्स जो आपका है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होता है, क्लास 10th में फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ फोर्स जो है आपका, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो मैं लिख सकता हूं m1, है ना. Mass is a fundamental quantity, m raised to power 1. Acceleration you have calculated here. Acceleration जो है वो खुद है m0 L1 t minus 2. तो it becomes, when bases are same, powers are added. So it is 1 plus 0 is 1. It is L raised to power 1, t raised to power -2. So ये आपका force बना. So force is again a derived quantity because it can be represented in terms of three fundamental quantities. और ये किस पे डिपेंड करता है? Mass raised to power 1, L raised to power 1 and t raised to power -2. So these are the examples of what we call as derived quantities in physics. So all those quantities in physics which can be represented in terms of fundamental quantities, they are said to be derived quantities. जैसे आपने देखा स्पीड जो है वो m raised power 0, L raised power 1, t raised power -1 पे, तो मास भी फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल, टाइम भी आपका फंडामेंटल. इन द सेम फैशन वेलोसिटी भी ऐसा ही क्वांटिटी है. फिर एक्सेलरेशन में आपने वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी तो आपने कैलकुलेट किया है, डिवाइड टाइम करके आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया. फिर फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो दिस इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिराइव्ड एंड अ फंडामेंटल क्वांटिटीज. अब ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया हर एक केस में, जैसे स्पीड में आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया m0 L1 t, इस फॉर्मूला को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं. वी कॉल दिस फॉर्मूला एज डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना. This formula is called as dimensional formula. तो अगर आपसे कोई पूछे what is the dimensional formula of speed in physics, तो आप बोलिए m0 L1 t minus 1. Dimensional formula हमें दिखाता क्या है? It shows us a relationship between a derived in terms of its fundamental quantities. So that formula in physics which shows us a relationship between a derived in terms of its fundamental quantities, that relation is called, that formula is called as dimensional formula. तो अगर आपसे कोई पूछता है what is the dimensional formula of speed, तो आप बोलिए m0 L1 t minus 1. What is the dimensional formula of velocity? Again m0 L1 t minus 1. What is the dimensional formula of acceleration? That is m0 L1 t minus 2. What is the dimensional formula of force? It's m1 L1 t minus 2. So dimensional formula is that formula in physics which shows us a relationship between a derived and a fundamental quantity. तो मैं अगर यहां पे ऐड कर दूं dimensional formula क्या होता है? Dimensional formula, that formula which shows us
a relationship between derived and fundamental quantity. ठीक है, वो फॉर्मूला फिजिक्स में जो हमें रिलेशनशिप एक डिराइव्ड का उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज में दिखाता है, उस फॉर्मूला को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं. तो मैंने आपको एग्जांपल दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड. अगर आपसे कोई पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड तो आप बोलेंगे m0 l1 t minus 1. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट एक्सेलरेशन? इट इज m0 l1 t minus 2. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? It is m1 l1 t minus 2. So these are the dimensional formulas. इनको हम dimensional formulas कहते हैं. फिर उसके बाद इसमें टर्म आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस इन फिजिक्स? डायमेंशंस क्या होता है? क्योंकि आपने जब चैप्टर का हेडिंग लिखा आपने तो आपने लिखा यूनिट्स एंड डायमेंशंस. और व्हाट आर डायमेंशंस? तो ये तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया. और डायमेंशनल फॉर्मूला वो चीज होती है जो हमें एक रिलेशनशिप देती है डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूलाज. और आपको बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में आप पढ़नी है 11th 12th और एंट्रेंस में, जिनके आप साथ साथ डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे. दैट इज दोज फॉर्मूलाज विच शो अस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. कि एक डिराइव्ड किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उस फॉर्मूला को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. अब डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर्स which are raised on the fundamental quantities in order to represent a derived. For example, यहां पे आप देखिए ये एक derived quantity है. आपने जो पावर चढ़ाए हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, मास, लेंथ एंड टाइम, इन पे जो आपने पावर चढ़ाए, उन पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, आप डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या है? तो आप बोलिए डायमेंशंस ऑफ द स्पीड आर हियर, इट इज 0, 1, -1. So dimensions are only powers which are raised on the fundamental quantities in order to represent a derived quantity. For example, आपसे कोई पूछे what are the dimensions of acceleration? Dimensions of acceleration are only the powers which are raised on these fundamental quantities. So it is 0, 1, -2. What are the dimensions of force in physics? Dimensions of force हमें physics में बोलिए तो it is 1, 1, -2. So this becomes now clear. What is a dimensional formula? That formula which shows us an actual relationship between a derived quantity in terms of fundamental quantities. That formula is called as dimensional formula. Sir, what are dimensions? Dimensions are only powers. They are only powers which we raise on fundamental quantities in order to represent a derived quantity. For example, dimensional formula अगर आप बात करोगे स्पीड की तो वो पूरी फॉर्मूला होती है m0 l1 t minus 1. जब आप डायमेंशंस ऑफ स्पीड की बात करोगे तो वो सिर्फ पावर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड क्वांटिटी. तो डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर ओनली 0, 1 एंड -1. इसी तरह मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं क्योंकि आपने ये स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स जो है 9th में पढ़ा होता है. 10th में एक क्वांटिटी आपने पढ़ी होती है, दैट्स करंट. करंट होता है चार्ज बाय टाइम. कितना चार्ज फ्लो हुआ डिवाइड बाय टाइम. तो I इज इक्वल, क्लास 10th में आपने पढ़ा इट्स Q बाई T. तो यहां से आप क्लियर करो Q इज इक्वल आई टी. ठीक है, I. नाउ Q इज इक्वल आई टी. अब हम जाएंगे पीछे, करंट हम देखेंगे कौन सी क्वांटिटी है. तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है, आई हैव डिस्कस्ड विद यू पीपल. देखिए करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स सिंबल इज यूज्ड एज A. लेंथ, टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है. तो अगर आप चार्ज पे वापस आएंगे तो चार्ज जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. वन इज सर करंट. करंट पीछे फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल यूज ए. टाइम हमें पहले ही पता फंडामेंटल क्वांटिटी, सिंबल यूज इज कैपिटल टी. तो मैं लिख सकता हूं A1 T1. तो चार्ज इज द डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटीज. वन इज करंट एंड अनदर इज टाइम. तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जिसमें एक क्वांटिटी आपका करंट इन्वॉल्वड है और दूसरा क्वांटिटी इन्वॉल्वड आपका टाइम है. सो दिस बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज. तो इस फॉर्मूला को आप क्या कहेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला. क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ाया कि डायमेंशनल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो आपको रिलेशनशिप बिटवीन डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज देता है. तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन terms of fundamental quantities and this formula in physics is called as dimensional formula. अगर आपसे कोई पूछे what are the dimensions of charge,
What are the dimensions of the charge? Dimensions of charge. तो मैंने आपको अभी बोला कि dimensions mean only powers which are raised on fundamental quantities in order to represent a derived quantity. So the powers here are 1, 1. So dimensions of charge here are 1 and 1. तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका पूरा फॉर्मूला होता है जो आपको रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज, और सिर्फ पावर्स अगर आप लिखते हैं तो उनको हम डायमेंशंस कहते हैं. सो दिस बिकम्स नाउ, है ना, क्लियर दैट अभी तक जो हमने डिस्कशन किया कि हमने फिजिक्स में जो क्वांटिटीज को डिवाइड कर दिया, फिजिकल क्वांटिटी को जो हमने डिवाइड कर दिया इनटू ग्रुप्स. वन ग्रुप इज कॉल्ड एज फंडामेंटल, सेकंड इज कॉल्ड एज डिराइव्ड, एंड थर्ड को आप छोड़ दीजिए फिलहाल, that is supplementary. Now fundamental quantities are those quantities which are basic, independent of each other, they don't have a relationship, है ना, with each other, and they are only 7 in number. Mass, length, time, temperature, current, luminous intensity and quantity of matter. ये केमिस्ट्री की क्वांटिटी जो आप पढ़ेंगे वहां पे. तो luminous intensity आपका जो है आप क्लास 12th ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे. ये मास जो है आपने पढ़ा होता है, लेंथ, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, करंट. तो ये सारी 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती है. फिर मैं चला गया डिराइव्ड क्वांटिटीज पे. मैंने बोला वो सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं. तो वो क्वांटिटीज विच वी कैन रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल, दे आर सेड टू बी डिराइव्ड. और फिर मैंने एग्जांपल्स में लिया आपका एरिया. एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि एरिया आप देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ, अगेन लेंथ एंड लेंथ. तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो एरिया इज डिराइव्ड बिकॉज it depends on a fundamental quantity, that's length. इसी तरह वॉल्यूम आप देखिए लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ये भी लेंथ इनटू लेंथ, तो ये हो गया L raised power 3. वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ अ फंडामेंटल क्वांटिटी. इन द सेम फैशन मैंने डिस्कस किया आपके साथ स्पीड. स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस हो गया लेंथ डिवाइड बाय टाइम. तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो स्पीड का ये तो फॉर्मूला आया, मगर मैंने फिर ये लिख दिया क्योंकि मैक्सिमम बुक्स ऐसे ही लिखती है. इससे क्लियर होता है कि एनीथिंग रेज्ड पावर 0 तो हमें पता है ये 1 होता है. फर्क फॉर्मूला पे नहीं पड़ता. सर फिर इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? क्योंकि जब आप मोशन आगे पढ़ोगे फिजिक्स में तो एक बॉडी का मास होता है, वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है और उसको कितना टाइम लगता है. तो इसलिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया m raised power 0. और यहाँ से क्लियर हुआ कि स्पीड मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में किया. इस फॉर्मूला को हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, विच शोज अस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिराइव्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. इन द सेम फैशन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ एंड देन टाइम इज अगेन अ फंडामेंटल क्वांटिटी. तो वेलोसिटी भी हम लिख सकते हैं m0 L1 t-1. ये स्पीड और वेलोसिटी के फॉर्मूलाज बराबर है, सेम है, क्योंकि ये वेक्टर और स्केलर वो अलग जो है आपका चैप्टर है. यहाँ पे वेक्टर और स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वांटिटी पे. डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ठीक है. तो वेक्टर्स में आप अलग से जो हम डिस्कस करते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी, बट डायमेंशनल फॉर्मूला की जहां तक बात है और यूनिट की जहां तक बात है वो दोनों का सेम होता है. इन द सेम फैशन एक्सेलरेशन आप देखिए वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी वी हैव ऑलरेडी है ना कैलकुलेटेड दैट इट डिपेंड्स ऑन दीज 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिवाइड बाय टाइम. तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला बना, इसको हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं. इसी तरह फोर्स होता है फिर मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो पहले ही कैलकुलेट किया, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. अगेन इट्स कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स. तो मैंने लिखा फिर डायमेंशनल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होती है जो रिलेशनशिप देती है आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज का इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो ऑल दोस फॉर्मूलाज इन फिजिक्स व्हिच शोस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला. यह हमें दिखाता है ये फॉर्मूला कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है और कैसे करती है. दैट थिंग इज कॉल्ड एज डायमेंशनल फॉर्मूला. उसके बाद हमारा हेडिंग था व्हाट आर डायमेंशंस. तो मैंने बोल दिया डायमेंशंस पावर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेज कर देते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड, यू टेल हिम दैट इट इज 0, 1 and -1. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, 0, 1 and -2. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स हियर, इट्स 1, 1 and -2. So dimensions are only powers which we raise on fundamental quantities in order to represent a derived quantity. तो dimensions का जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. dimensions जो है तो करंट भी आपको क्लियर हो गया यहाँ पे. So what are dimensions here, sir? Dimensions, they are powers which are raised on fundamental quantities, on fundamental quantities. So they are the powers which are raised on fundamental quantities in order to represent
a derived quantity in order to represent a derived quantity. ठीक है, तो डायमेंशन सिर्फ पावर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए derived क्वांटिटी. जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि चार्ज एक derived क्वांटिटी है, डिपेंड्स ऑन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, करंट एंड टाइम. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ चार्ज, देन इट्स 1 and 1. इन द सेम फैशन हमने पीछे डिस्कस किया कि डायमेंशनल फार्मूला तो पूरा फार्मूला होता है जो कनेक्ट करता है एक derived क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज. उस पूरी फार्मूला को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं. मगर सिर्फ पावर्स को जो हम फंडामेंटल क्वांटिटी पे रेज करते हैं इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट ए derived क्वांटिटी, उनको हम डायमेंशंस कहते हैं. जैसे डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर ओनली 0, 1 and -1, एक्सेलरेशन का 0, 1 and -2, फोर्स का आपका 1, 1 and -2. उसके बाद इसमें तो दिस इज व्हाट डू मीन बाय डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला. ठीक है, तो यहां से हमें क्लियर हुआ कि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया, दैट इज व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है? इट्स रिप्रेजेंटेशन, इट्स मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए न्यूमेरिकल पार्ट एंड यूनिट. और फिर हमने उसके बारे में डिस्कशन किया दैट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट n into u. अगर न्यूमेरिकल पार्ट चेंज होता है तो यूनिट अकॉर्डिंगली चेंज होता है, बट द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट. उसके बाद मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटीज को हमने ग्रुप कर दिया इनटू 3 मेजर ग्रुपिंग्स. वन इज फंडामेंटल, अनदर इज derived एंड थर्ड इज सप्लीमेंट्री. तो हमने फिर उसके बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज बेसिक 7 इन नंबर हमने डिस्कस की कौन कौन सी क्वांटिटी है. उसके बाद डेराइव्ड पे आज हम चले गए. डेराइव्ड वो क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है. और फिर कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस की. नाउ द होल फिजिक्स इज फिल्ड विद द डेराइव्ड क्वांटिटीज. अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी स्ट्रेन पढ़ाऊं, आपको अभी स्ट्रेस पढ़ाऊं. तो दीज आर द क्वांटिटी जो आप अपने अपने चैप्टर रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में पढ़ोगे, और जैसे पढ़ोगे आपको फॉर्मूला पता चलेगा और फिर आप उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो. जैसे आपने फोर्स अभी मेरे पास पढ़ा, तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा आपने पढ़ा है. तो मास इंटू एक्सेलरेशन, जब आपको फॉर्मूला पता है, आपने मास प्लॉट कर दिया, उसमें एक्सेलरेशन के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिए और फिर क्लियर हो गया. मगर अगर मैं आपको अभी बोलूं स्ट्रेस आपने कोई क्वांटिटी पढ़ी ही नहीं आज तक, वो आप 11th क्लास में सॉलिड्स में पढ़ेंगे. स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया. जब फॉर्मूला पता चली तो फोर्स भी पता है आपको, एरिया भी पता है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल दूं, आप आगे पढ़ोगे क्लास 11th में एक क्वांटिटी जिसका नाम है स्ट्रेस. स्ट्रेस होता है बच्चों फोर्स बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. ठीक है, नाउ इट इज क्लियर, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया. अगर मैं ऐसे आपको बोलता स्ट्रेस क्या है तो आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं. स्ट्रेस आपको बिल्कुल पढ़ना है, मगर फिलहाल क्योंकि मुझे पता है तो मैं आपको बोलूं ऐसी क्वांटिटीज आपको ऐसे ही मतलब आगे जब आप रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. ऐसे आप याद करेंगे तो बिल्कुल मुश्किल है. तो स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया. फोर्स आपने अभी देखा, दैट्स m1 l1 t-2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स. फिर एरिया जो है दैट इज L2. तो जैसे ये L2 आ गया, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा दिया, L2 है ना, इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ स्क्वायर, फंडामेंटल क्वांटिटी. तो आई कैन राइट इट एज m1 L. देखिए -2 ऊपर जाएगा तो -2 + 1 इज -1 एंड देन t-2. सो दिस बिकम्स द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इन फिजिक्स. तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इन फिजिक्स, यू टेल हिम सर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस इन फिजिक्स इज m1 L-1 t-2. सर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस? ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका स्ट्रेस का जो है दैट इज m1 L-1 t-2. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस इन फिजिक्स, ठीक है, डायमेंशंस क्या है, तो आप बोलेंगे सिर्फ पावर सर, 1, -1, -2. So dimensions are the powers which are raised on fundamental quantities in order to represent a derived quantity. तो इसी तरह और एक क्वांटिटी आपने पढ़ा होता है क्लास 9th में जिसको आप प्रेशर कहते हो. तो प्रेशर तो आपको पता है. देखिए प्रेशर आपको बिल्कुल क्लियर होता है, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. ठीक है, ये आप बिल्कुल जो है डिटेल्ड पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में. देखिए यहां स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया, प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया. इसका डिफरेंस क्या है फिर सर? फिर हमने इसका नाम प्रेशर क्यों दिया, इसका स्ट्रेस, यही तो आपको 11th क्लास में पढ़ना है. फिलहाल मैं डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूलाज की बात कर रहा हूं, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूं. तो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. जैसे अभी आपने स्पीड भी देखा वही है ना, m1 दैट्स m0 L1 t-1. वेलोसिटी भी देखा m0 L1 t-1. फर्क ये है कि एक स्केलर है दूसरा वेक्टर है. इन द सेम फैशन प्रेशर और स्ट्रेस में भी कुछ फर्क है, वो आप आगे फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो एक अलग जो है टॉपिक है, तो आप अपने रेस्पेक्टिव चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे. प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. तो सर अब हमें डिराइव हुई क्यों करना है, फोर्स बाय एरिया तो हमने कैलकुलेट किया, इट इज m1 L-1 एंड देन t-2. सो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, तो आप बोलेंगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज m1 L-1 t-2. सर व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर? अगर हमसे पूछा जाए कि डायमेंशंस ऑफ प्रेशर क्या है सर, तो आप बोलेंगे 1, -1 and then -2. So this makes the difference between a dimensional formula
एंड व्हाट डू मीन बाय डायमेंशंस। एंड यहां से क्लियर हुआ कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, और क्यों इनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं और क्यों इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, क्योंकि एवरी डिराइव्ड क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। दैट formula is called as dimensional formula, and the powers which we raise on the fundamental quantities in order to represent that particular derived quantity are said to be the dimensions. In the same fashion आपने, मैं इसमें कुछ और क्वांटिटीज ऐड करने जा रहा हूं। जैसे आपने एक क्वांटिटी पढ़ा होता वर्क, ठीक है, क्लास 9th के हिसाब से फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बट एक्चुअली जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये F.S होता है। फिलहाल आप डायमेंशंस पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 9th के हिसाब से ही चलिए कि आपने वर्क पढ़ा है, दैट्स फोर्स इंटू डिस्टेंस। नाउ फोर्स आपने भी देखा कि फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी, और फोर्स जो है वो खुद है m1 L1 T-2। सो ये इन तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। नाउ डिस्टेंस आपका है लेंथ होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इट्स L⁻⁴ तो वर्क बना आपका, तो मैं लिखूं यहां पे वर्क इज इक्वल, इट इज m⁻⁴ नाउ व्हेन बेसिस आर सेम, powers are added, so 1 + 1 is 2, then it is T⁻⁻²। this formula is called as dimensional formula of work। तो ये आपके पास अब dimensional formula of work है। सर what are the dimensions of work? अगर आपसे कोई पूछे कि डायमेंशंस ऑफ वर्क जो है दैट इज 1, 2, -2। सो डायमेंशनल फार्मूला एक पूरी फार्मूला है जो आपको एक डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, उस फार्मूला को हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। तो और डायमेंशन सिर्फ पावर्स होते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे रेज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रेजेंट ए पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अब आपके पास वर्क आ गया है ना, अब आपके पास वर्क आ गया, और वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला आपका है दैट इज m1 L2 and then T-2। so this is the dimensional formula of work। now अगर वो आपसे पूछे what is the dimensional formula and what are the dimensions of energy, ठीक है, एनर्जी हमें बोलो। देखो you know that work is energy, तो वर्क इज एनर्जी, वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी, ठीक है, वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी। तो जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क का होता है फिजिक्स में, वही डायमेंशनल फार्मूला एनर्जी का भी होता है। अब एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है, जैसे आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, है ना, बट यू नो दैट बाय द बेसिक डेफिनेशन फ्रॉम क्लास 9th दैट वर्क इज एनर्जी इन फिजिक्स। तो जो डायमेंशनल फार्मूला या जो यूनिट वर्क का होगा फिजिक्स में, जैसे वर्क का यूनिट होता है एसआई यूनिट जूल, तो वही यूनिट एनर्जी का भी होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल। सर व्हाई, क्यों यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ एनर्जी सेम है? बिकॉज वी डिफाइन एज वर्क एज एनर्जी। तो जब वर्क एनर्जी है तो जो वो यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला की जब बात हम करें तो वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला है वो एनर्जी का भी होना चाहिए। और फिर एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स है, जैसे काइनेटिक एनर्जी अगर आपसे पूछे तो अब बोलिए सर ये वर्क के बराबर ही होगा, दैट्स m1 L2 T-2। so the dimensional formula of kinetic energy is same as that of work because work is energy, the units and dimensions are same। इसी तरह आपसे कोई पूछे what is the dimensional formula of potential energy, आप बोलेंगे सर एनर्जी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी सेम एज दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी सेम एज दैट ऑफ एनर्जी सेम एज दैट ऑफ वर्क। तो फिर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी इज नथिंग, इट इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगेन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम m1 L2 T-2। दीज आर ओनली द टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तो टाइप्स है एनर्जीज के ये, मगर एनर्जी एक्चुअल क्वांटिटी तो एनर्जी इन्वॉल्वड है और वर्क इज एनर्जी। सो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला और सबके डायमेंशंस बराबर होते हैं। तो इसी तरह आपसे कोई पूछे हीट एनर्जी का मुझे बोलो, ठीक है, वो आपको सिर्फ घुमा रहा है हीट एनर्जी का क्या है। हीट एनर्जी का भी वही है जो एनर्जी का है, m1 L2 T-2। तो एक सेट बना फिजिक्स में कि आपका जो वर्क है, वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही एनर्जी का भी है, वही एनर्जी का भी है, क्योंकि वर्क इज डिफाइंड एज एनर्जी इन फिजिक्स। द यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो जब दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों क्वांटिटीज एक जैसी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। अब एनर्जी में बहुत सारे टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी तो सेम फॉर्मूला आ जाएगा आपका, टोटल एनर्जी तो वही फॉर्मूला आ जाएगा आपका, हीट एनर्जी तो बिल्कुल वही फॉर्मूला आ जाएगा। और एक क्वांटिटी आप पढ़ने जा रहे हो आगे फिजिक्स में जिसको हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। मैंने अपने वेक्टर बैच में, वेक्टर क्लास में जो मैंने बैच में पढ़ाया है उनमें मैंने बिल्कुल टॉर्क थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो टॉर्क अगर नहीं पढ़ा आपने तो आप पढ़ेंगे, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप एक्चुअली पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में, फिलहाल 9th के हिसाब से मैं बोल रहा हूं आपको। 9th क्लास में अपने टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स आपको पता है दैट्स m1 L1
t माइनस टू, डिस्टेंस इज लेंथ, दैट्स L1, डिस्टेंस होता है लेंथ है ना, टॉर्क खुद होता है मल्टीप्लाई ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है। तो फोर्स आपको पता है m1 L1 t माइनस टू, क्योंकि मैंने पीछे डिस्कस किया है। और फिर देखिए m1 फोर्स का m1 L1 t माइनस टू, और फिर डिस्टेंस अगेन इट्स लेंथ, दैट्स रेज पावर 1, तो इट इज m रेज पावर 1। तो लेंथ और लेंथ बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इट्स l रेज पावर 2 t माइनस टू। देखिए बिल्कुल यही फॉर्मूला है, देखिए m1 L2 t माइनस टू, m1 L2 t माइनस टू, m1 L2 t माइनस टू, सेम m1 L2 t माइनस टू, m1 L2 t माइनस टू, यहाँ पे वर्क का m1 L2 t माइनस टू। सो दिस बिकम्स अ सेट ऑफ क्वांटिटीज इन फिजिक्स विच आर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये एक सेट ऑफ क्वांटिटीज फिजिक्स में बना जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपसे कोई पूछे कोई ऐसा सेट बोल दो जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिक्स में सेम है, या कोई ऐसा सेट बोल दो जिनके डायमेंशंस फिजिक्स में सेम है, जैसे इन सब क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या है, इन सब क्वांटिटीज के डायमेंशंस है 1, 2, -2। इस पूरे सेट का डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशंस बराबर फिजिक्स में है, और वो सेट है आपका वर्क, फिर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, हीट एंड टॉर्क। दिस बिकम्स अ पर्टिकुलर सेट इन फिजिक्स whose dimensions and dimensional formula are same। तो ये होता है आपका कि व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, 7 नंबर में होती है, बेसिक क्वांटिटीज होती है, और फिर डेराइव्ड वो क्वांटिटीज होती है जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस की, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, आपका एक्सेलरेशन, आपका फोर्स, फिर वर्क, फिर चार्ज, आपने देखा एक क्वांटिटी, और फिर आप वर्क से चले गए एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड टॉर्क। और इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती है, वो फॉर्मूला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डेराइव्ड क्वांटिटीज के साथ कनेक्ट कर देता है, उस पूरी फॉर्मूला को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। और फिर व्हाट आर द डायमेंशंस इन फिजिक्स, दे आर ओनली पावर्स व्हिच वी रेज ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ डेराइव्ड क्वांटिटी। सो दोज क्वांटिटीज, those formulas are called as actually dimensional formulas, and the powers which are raised on fundamental quantities in order to represent a derived quantity is said to be what we call as dimensions। ठीक है, उनको हम dimensions कहते हैं, जिसमें ये हमने सारा डिस्कस किया। अब इंशाल्लाह रहमान वो कल जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ दिस चैप्टर पढ़ेंगे, दैट्स एप्लीकेशंस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। थैंक यू।